Good morning students. Today we are going to start our lesson 1, Rahul's decision. This is the story of a young boy Rahul. His board examination was over and he was leaving for his hometown. He had took a decision. For that decision he want to discuss with his parents. So let us read and rejoice this story. And we will see what was his decision and how his parents were agreed for his decision. Rahul was among the last to leave the hostel. The board examination was over. He was deep in thought as he boarded the train. He had taken a decision, but he knew his parents would never approve it. He walked home from the station. This gave him time to prepare himself. राहुल अपने हॉस्टल को छोड़ने के लिए तैयार था क्योंकि उसके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए थे। जब वो ट्रेन में था उस समय वह गहरी सोच में था क्योंकि उसने एक निर्णय लिया था और वो इस निर्णय पे अपने पिताजी से और माताजी से बात करना चाहता था। हालांकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उसने निर्णय किया कि मुझे अपने निर्णय के बारे में अपने माता पिता से बात करना चाहिए। जब वो अपने होम टाउन पहुंचा तो वो पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा, जिससे कि उसे अपनी बात को किस तरह से अपने पेरेंट्स के सामने कहना है इसके लिए थोड़ा टाइम और मिल गया। His home was a farm some 6 kilometers out of the town. It was 5 in the evening when he, tired and dusty Rahul, finally pushed open the door of the courtyard. His mother stood with her back so the door, busy mixing the evening feed for the cows. She never turned around till Rahul was right behind her, and then in a minute her eyes filled with tears of gladness. "Oh Rahul, my son, when did you come?" A little later, they were joined by Rahul's father. His lean face flushed with pleasure. "Hello son," he said in a voice that quivered unmistakably. राहुल का घर स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर था और जिस समय वो अपने घर पहुंचा शाम के 5 बज चुके थे। जब वो अपने आंगन में पहुंचा उसने देखा उसकी माँ शाम के लिए गायों के लिए चारा बनाने में बिजी थी। राहुल अपनी माँ के पीछे आकर के खड़ा हो गया और उसकी माँ ने जैसे ही उसे पलटकर देखा उनकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए और उन्होंने कहा, "ओ राहुल, माय सन, व्हेन डिड यू कम?" कि तुम कब आए। और जल्द ही उसके पिताजी भी वहां आ गए और वो तीनों आपस में एक दूसरे से मिले। Rahul was quite accustomed to his mother giving vent to her feeling. He knew how to comfort her, but when his father fought back a tide of emotions, things were different. Rahul knew how life had treated his father. राहुल जब अपनी माँ से मिला तो उसकी आवाज में कंपन था और वो जानता था कि मुझे अपनी माँ को किस तरह से टैकल करना है, लेकिन अपने पिताजी के लीन फेस को देख करके वह समझ रहा था कि जिंदगी कितने ही संघर्षपूर्ण तरीके से उसके पिताजी को ट्रीट कर रही है। He had seen photographs of the army officer who was forced to take premature retirement because he could not bear the strain of 2 wars. राहुल जानता था कि उसके पिताजी ने सेना से रिटायरमेंट समय से पहले ही अवकाश ले लिया है क्योंकि वो दो युद्धों के वार को स्ट्रेन को नहीं झेल सके। He knew how all the money had gone into their holding. He knew that heartbreaks too, the crops that failed, the money that sank every year, taking a little bit of the man with it too. Rahul met his father with deep sympathy,
but very few words. राहुल को पता था कि उसके पिताजी ने सेना से समय से पूर्व ही अवकाश ले लिया था और जो कुछ भी पैसा उनके पास था वो उन लोगों की जमीन का जो टुकड़ा एक छोटा सा उनके पास था जिसपे वो लोग खेती कर रहे थे उसके रख रखाव में और उसके मेंटेनेंस में किस तरह से खर्च हो रहा था. He looked away, taking time to recover himself. In half an hour they were seated around the table, having dinner in the blue enamel plates that had come from the army canteen years ago. थोड़ी देर में वो लोग एक टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए और रात का खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए. उस समय में राहुल ने देखा कि उसके पिताजी के कैंटीन से जो प्लेट्स आई थी उसमें उसकी मदर खाना सर्व कर रही थी. राहुल वॉज प्रिपेयरिंग द स्पीच ऑफ हिज लाइफ. ही वुड बिगिन आफ्टर डिनर. फादर, there's something I would like to tell you. Let me say it now or I will never be able to say. Father, I know you want me to do great things, electronics or medicines or maybe a career in IAS. But there's only one thing that I want to do and that is farming. Here on this very land I like farming. जब खाने के लिए सब इकट्ठा हुए मेज पर तब राहुल मन ही मन जो कि निश्चय कर चुका था अपने पेरेंट्स से अपने डिसीजन के बारे में बात करने के लिए, तो राहुल ने अपनी बात कहना स्टार्ट किया. राहुल ने अपने पिताजी से कहा कि मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या मेडिसिन में या एक IAS ऑफिसर बन करके अपना कैरियर स्टार्ट करूँ, लेकिन मैंने डिसीजन लिया है कि मुझे खेती करना है. आई वॉन्ट टू बिकम अ फार्मर. Beside, all you need in order to make a go of things is a tough, reliable hand like me. I am telling you. Oh mother, don't cry. Surely you want me here, don't you? उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे यहाँ पर देख करके खुश होंगे और आपको मेरे जैसा रिलायबल हैंड दूसरा नहीं मिलेगा. यह सुनकर के उसकी मदर रोने लगी. तब उसने कहा कि मम्मी रो मत, आप खुद भी चाहती हो कि मैं यहीं आपके पास रहूं. And so he went on and on within himself. Throughout the dinner, his mother's superb cooking went unnoticed, as did the tense look on his father's face. The meal was over at last. इन सब बातों के बीच में उसकी माँ ने जो स्वादिष्ट खाना बनाया था उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया और उन लोगों के चेहरे पे थोड़ा सा टेंशन दिखाई दे रहा था. राहुल put out the wicker stool in the courtyard and the three of them sat down. The second ticked by. Away in the distance someone tooted a horn. Rahul drew a deep breath and so he did his father. But it was the latter who spoke first. Rahul, I have something to say to you. And to Rahul, the words sounded very familiar. खाने के बाद राहुल ने बाहर आंगन में स्टूल लगा दिए और वो तीनों फिर से वहां बैठ गए. उसी समय बाहर से उन्हें कोई आवाज सुनाई दी जो कि राहुल की फैमिलियर साउंड थी. There was a pause and then his father went on again as if unburdening himself of a speech carefully rehearsed. Rahul, it's time you think seriously about your future. अब राहुल के पिताजी ने बोलना शुरू किया. उन्होंने कहा कि देखो राहुल, ये समय सीरियसली अपने कैरियर के बारे में सोचने का है.
You have so many career options to choose from. You could be an engineer or a doctor, or you could sit for a competitive examination. Which shall it be? Rahul said in a croaky voice, which eye do you want it to be? उन्होंने राहुल से कहा कि यह समय तुम अपना कैरियर बना सकते हो, चाहे तो आप डॉक्टर बन सकते हो या आप इंजीनियर बन सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है. His father was caught in an unguarded moment. The word came tumbling out. We didn't want to influence you in any way, son. That's why we have always kept it a secret. उन्होंने कहा हम अपनी इच्छाएं तुम पे थोपना नहीं चाहते, हमने अभी तक ये सीक्रेट रखा था. But your mother and I would be the happiest if you could join us here. लेकिन अगर तुमने यह निर्णय लिया है कि तुम खेती करके यहाँ हमारे साथ रहना चाहते हो, तो हम अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझेंगे. I mean it's a clean, healthy, wonderful life away from all the noise and smoke of the city. बल्कि मैं कहूँगा कि तुम गांव में एक बहुत ही हेल्दी और वंडरफुल लाइफ को एंजॉय कर सकते हो. एंड देयर इज सो मच दैट वी कुड डू टुगेदर. और यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो हम दोनों मिलकर के कर सकते हैं. राहुल डिड नॉट नो हाउ टू हाइड हिज फीलिंग्स फ्रॉम हिज फैमिली. देयर वर टीयर्स इन हिज आईज. फॉर वंस ही डिड नॉट केयर इफ अदर्स सॉ देम. और ये सब सुनकर के राहुल को समझ नहीं आया कि वो अपनी भावनाओं को किस तरह से छुपाए, और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए.